Hello everyone, this is Nitin Suman, TGT Science at KV Ranikhet. As you already know that we have completed chapter 1, but in this live session we are again discussing about chapter 1, that is matter in our surrounding. In this live session you can also ask questions from me that we will discuss after the class. So here we are starting. I am writing some or name of some objects here like pen, like pen, chair, food, cloth. So these are the some objects: pen, chair, food, clothes. All these are made up of matter. All these are made up of matter. But here the question come: what is matter? What is matter? So we will discuss here what is matter. Anything that occupies space and have mass is known as matter. तो definition क्या है? That anything that occupies space and have mass is known as matter. तो ऐसी कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास होता है उसे हम मैटर के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. अब बात आती है मैटर यहां पर आ जाता है. फिर वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मैटर, दैट व्हाट आर नॉन मैटर्स. तो यहां पर मैं कुछ एग्जांपल लिखने जा रहा हूं नॉन मैटर के, जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि नॉन मैटर क्या होता है. नंबर 1 इज इमोशन, टाइम, साउंड, सनलाइट, एनर्जी. ये सब चीजें जो है इमोशन, टाइम, साउंड, सनलाइट और एनर्जी, ये नॉन मैटर में काउंट होती है. बिकॉज ना तो ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती है ना ही इनमें मास होता है. वी कैन ओनली सेंस दीज थिंग्स, सो दीज थिंग्स आर known as non-matter. Now, in ancient time, our Indian philosophers classified matter into 5 basic elements. Classified matter into 5 basic elements. What are these basic 5 elements are? Number 1 is air. Number 2 is water. Number 3 is fire. 4 is earth. And number 5 is sky. So these are the 5 basic element from which all the matter is made up of. तो जो इंडियन फिलोसोफर थे एंशिएंट टाइम में, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था. और ये 5 बेसिक एलिमेंट्स है एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई. और इन्हीं को जो इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने पंचतत्व नाम दिया था. They named them पंचतत्वास. So these are the पंचतत्वास. एयर का मीन है वायु, वाटर जल, फायर मीन अग्नि, अर्थ मीन पृथ्वी एंड स्काई मीन आकाश. So these are the 5 basic elements which Indian philosopher named Panchtattva, and from these Panchtattva all the matter is made up. This said by Indian philosophers. But in modern time, we have classified matters into 2 categories.
These two categories are, one is physical properties of physical properties of matter, and second one is chemical properties of matter. So in modern time we have divided or classified matter according to physical properties of matter and chemical properties of matter. In this lesson we only discuss about physical property of nature. We only discuss about physical property of nature. So now the topic comes physical nature of matter. Physical nature of matter. So the number one point is physical nature of matter, that matter is made up of particle. Matter is made up of particles. जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर हम आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके थ्रू हम समझ सकते हैं। लाइक हम बात करते हैं स्पून ले, स्पून में हम स्पून के अंदर हम सॉल्ट ले लेते हैं। तो ये स्पून के अंदर हमने सॉल्ट लिया हुआ है। यहाँ पर जब हम सॉल्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो सॉल्ट होता है स्पून के अंदर वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो कि सॉल्ट के पार्टिकल्स है। तो सॉल्ट एक मेटल है। इसी तरह से जैसे सॉल्ट में बहुत सारे पार्टिकल्स इंक्लूड है, उसी तरह से हर मेटल में इसी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं और इन पार्टिकल्स के थ्रू ही कोई भी मेटल बना हुआ होता है। तो नंबर वन फिजिकल नेचर क्या है मेटर का, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड इज मैटर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। मैटर ऑफ particles are very small. Matter of particles are very small. So इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। उस एक्टिविटी के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बीकर लेंगे, एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1 और 2 क्रिस्टल KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के 1 और 2 क्रिस्टल्स ऐड करते हैं। उसके बाद हम थोड़ी बहुत देर बाद देखते हैं कि ये जो बीकर में वाटर है इसका कलर ये कंप्लीटली पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका कलर जो है वो पर्पल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम 1 या 2 क्रिस्टल्स ऐड करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के वाटर में, तो ये यहाँ पर इसके अंदर पहले डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है। ये धीरे धीरे कंप्लीटली इसको कंप्लीटली पर्पल कलर में बदल देता है। इससे हमें ये पता लगता है कि जो वो 1 और 2 क्रिस्टल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट में, उसमें इतने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो कंप्लीट वाटर को पर्पल कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो with the help of this experiment we can say that matter of particles are very small in nature. Now we will discuss about characteristics of matter. We will discuss about characteristics of matter. Characteristics of
मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर दैट particle of matter having space between them. Number one characteristic is particles of matter having space between them. मीन जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस अवेलेबल होता है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। कोई भी अगर मैटर है तो उसके पार्टिकल्स आपस में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स आपस में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्पेस हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस हमें इन पार्टिकल्स के बीच में दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, वी नेम इट इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। तो ये इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेस होता है, इसी के थ्रू हम बोलते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स है उनमें स्पेस अवेलेबल होता है। इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी दी हुई है, उस एक्टिविटी को हम डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी में बोला गया है कि आपको फिर से एक बीकर लेना है, और इस बीकर में वाटर फिल कर देना। और वाटर फिल करने के बाद आपको जिस लेवल तक वाटर है उस लेवल को मार्क कर देना है। हमने लेवल मार्क कर दिया है, इस लेवल तक वाटर अवेलेबल है, वाटर इज अवेलेबल टू दिस लेवल। अब इसमें हम थोड़ा सा शुगर ऐड करते हैं। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, वी आर एडिंग सम शुगर इनटू इट। और शुगर को हम एक ग्लास रोड की हेल्प से बिल्कुल मिक्स कर देना है। एक ग्लास रोड की हेल्प से शुगर को कंप्लीटली इस बीकर में मिक्स कर देना है। उसके बाद जब शुगर कंप्लीटली मिक्स हो जाती है तो उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे दैट अब भी जो वाटर लेवल है वो सेम है, मीन वाटर लेवल इज नॉट चेंजिंग आफ्टर एडिंग शुगर। कंक्लूजन क्या है इसका कंक्लूजन यही है कि जो एक्स्ट्रा शुगर हमने ऐड करी वो वाटर के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस था अवेलेबल, उस स्पेस के अंदर चली गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है दैट particles of matter having space between them. Now second character of matter. This is particles of matter are continuously moving. तो यहां पर क्या है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो मैटर है उसके पार्टिकल्स जो है स्मॉल पार्टिकल्स वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इसके लिए भी हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक रूम है, उसके किसी भी कोने में हम एक इंसेंस स्टिक लगाते हैं। मीन ये हमारा रूम हो गया, और इस रूम के इस कोने में हम एक इंसेंस स्टिक को पुट करते हैं। इंसेंस स्टिक मीन अगरबत्ती। इंसेंस स्टिक को हम यहां पर अनलिट करते हैं और इस वाले पोजीशन पर आप खड़े हैं, रूम की इस वाली पोजीशन पर आप यहां पर खड़े हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इस टाइम पर ये जो इंसेंस स्टिक है इसकी जो स्मेल है वो इस पोजीशन पर नहीं जा रही है, इस पॉइंट पर नहीं जा रही है। बट जब हम इसको लाइट कर देते हैं, इसको हम विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक इसको हम लाइट कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद यहां से स्मेल जो है वो हमारे तक पहुंच जाती है।
इस जो इंसेंस स्टिक है उसकी स्मेल हम तक आने लगती है। इसका मीन क्या है, जो इंसेंस स्टिक को लाइट अप करने के बाद जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स है वो एक रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ ट्रेवल करते हुए हम तक पहुंच जाते हैं। सो this experiment show that particles of matter are continuously in moving। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए फिर से हमें एक बीकर लेना होगा। और इस बीकर के अंदर हम फिर से वाटर फिल कर देंगे। इसके अंदर हम फिर से वाटर फिल कर देंगे। अब वाटर फिल करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप रेड इंक की मिक्स करते हैं। यहाँ पर हम इसमें 2 और 3 ड्रॉप्स रेड इंक की मिक्स कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि इस वाले पार्ट से स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। मीन जो इंक के पार्टिकल है वो थ्रेड के फॉर्म में नीचे की तरफ जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसका मीन क्या है, अगेन जो इंक के पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसको अगर हम देखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये जो बीकर का वाटर है वो कंप्लीटली रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मीन क्या है कि जो पार्टिकल्स थे, इंक के जो पार्टिकल्स थे वो यूनिफॉर्मली हमारे वाटर सॉल्यूशन में घुल गए हैं। सो these all converted into red color। तो इससे क्या पता चलता है that particles of matter are continuously in moving। now जो मेटल के पार्टिकल्स है ये डिफरेंट टाइप की मूवमेंट शो करते हैं। तो यहां हम पढ़ेंगे दैट पार्टिकल्स ऑफ मेटल शो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स शो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। Number one is translatory movement या translatory motion। Number two is rotational motion। And number 3 is vibrational motion। So these are the 3 types of movement that is shown by a particle of matter। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन की। तो ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका मीन क्या है, जब मैटर के पार्टिकल्स है किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं, लाइक इस तरह से वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल आ जाता है, इसी मैटर का दूसरा पार्टिकल आ जाता है। जैसे यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल से कोलोइड होने के बाद ये जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। या फिर जिस कंटेनर में ये मैटर रखे हुए हैं तो ये पार्टिकल उस कंटेनर की सरफेस से हिट करके कोलोइड होकर भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। पर इस वाले मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में, ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जब ट्रेवल करता है या कोलोइड होने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, दोनों ही पोजीशन में अपनी जो एनर्जी है उसको लूज नहीं करता, उसकी एनर्जी लूज नहीं होती। ये ट्रांसलेटरी मोशन की एक स्पेशलिटी है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या फिर किसी अदर पार्टिकल से कोलोइड होकर, या जो हमारा कंटेनर है उसकी सरफेस से कोलोइड होकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बट स्टिल वो अपनी जो है एनर्जी को लूज नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। और ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है ये मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में और मैक्सिमम इट इज फाउंड इन गैसेस। Maximum found in gas and minimum in solid।
solid. So this is the translatory motion. Now second motion is rotational motion. तो रोटेशनल मोशन इज लाइक अर्थ के रोटेशनल मोशन की तरह ही है, जहां पर कोई भी पार्टिकल जो है वो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमता है। जैसे कि अर्थ होती है, ये उसका एक्सिस है, तो अर्थ इस एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, इस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है। इसी तरह से रोटेशनल मोशन जो पार्टिकल का होता है, वहां पर भी अपनी वो एक्सिस के अराउंड में ही रोटेट करता रहता है। थर्ड वन इज वाइब्रेशनल मोशन। थर्ड वन इज वाइब्रेशनल मोशन। सो वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव इन अ टू एंड फ्रो मोशन अराउंड इट्स मीन पोजीशन। तो इसमें क्या है, पार्टिकल्स जो मूव करते हैं वो कोई भी मीन पोजीशन होती है ना, लाइक ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल की मीन पोजीशन ये रहेगी, तो ये इसके इधर और इधर लाइक अ पेंडुलम, लाइक अ पेंडुलम, ये इसके इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन ही शो करेगा। तो ये होता है हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन। सो दीज थ्री टाइप ऑफ मोशन, three type of movement shown by a particle. Number one is translatory motion, number two is rotational motion and number three is vibrational motion. जो vibrational motion होता है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है सॉलिड में, वो मैक्सिमम होता है सॉलिड में और मिनिमम होता है गैस में, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, दे आर कॉम्पैक्ट। तो सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल इस तरह से पास पास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसमें जो पार्टिकल्स के पास है फ्रीली मूव करने की जो स्पेस है वो कम अवेलेबल होता है, इसलिए वो अपनी मीन पोजीशन के बिल्कुल थोड़ा सा आसपास ही मूव करता है। जबकि गैस में जो होता है, जबकि गैस में स्पेस ज्यादा अवेलेबल होता है, बट वहां पर ट्रांसलेटरी मोशन शो करने की ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, इसलिए वाइब्रेशनल मोशन मैक्सिमम फाउंड इन solids and minimum found in gas. The third characteristic of particle of matter is that particle of matter attract to each other. The third characteristic is that particles of matter attract to each other. तो यहां पर क्या है, जो पार्टिकल्स है मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर हम दो एग्जांपल लेते हैं, लाइक वन एग्जांपल ले रहे हैं हम व्हाइट पेपर का, और सेकंड एग्जांपल है हमारे पास आयरन नेल। white paper and this one is iron nail। अगर हम बात करते हैं व्हाइट पेपर की, अगर हम व्हाइट पेपर पे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम इसको इजीली टियर कर सकते हैं, हम व्हाइट पेपर को इजीली टियर कर सकते हैं। बट हम बात करें आयरन नेल की, तो इस पर हम काफी फोर्स लगाने के बाद भी, आयरन नेल पर हम काफी फोर्स लगाने के बाद भी यहाँ पर हम इसको ब्रेक करने में सक्सेस नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो आयरन नेल के पार्टिकल है वो एक दूसरे को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट जो व्हाइट पेपर के पार्टिकल है वो एक दूसरे को इतने स्ट्रॉन्ग जो फोर्सेस है उससे अट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो जो फोर्सेस किसी भी मैटर के पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट इज नेम्ड एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो यहाँ पर जो आयरन नेल है उसके अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस व्हाइट पेपर के अंदर प्रेजेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से ज्यादा है। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मीन है एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी हमारे किसी भी मैटर की। सो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। नंबर 1 इज पार्टिकल ऑफ मैटर having space between them,
Number 2 is particles of matter are continuously moving. Number 3 is particles of matter attract to each other. These are the three characteristics of matter. Now we will discuss about diffusion. We will discuss about diffusion. This is diffusion. डिफ्यूजन जब हमने थोड़ी देर पहले जो एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें हमने देखा था दैट हमने वाटर के अंदर शुगर को मिक्स कर दिया था दैट वी हैव मिक्स्ड वाटर इनटू शुगर इनटू वाटर। तो जब शुगर को वाटर में मिक्स किया था तो इसका मीन क्या है दैट जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स में कंप्लीटली मिक्स हो गए थे। तो यही प्रोसेस डिफ्यूजन के नाम से जानी जाती है। तो डिफ्यूजन में हियर इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजिंग, स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग of one substance with another substance by the movement of its particles। तो जब किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से कोई दो डिफरेंट सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। मीन जब हम बात कर रहे थे बीकर में वाटर में शुगर ऐड करने की तो यहां पर जब हमने शुगर ऐड करी थी बीकर में तो शुगर के पार्टिकल्स ने मूवमेंट करी इसमें मिक्स होने के बाद और वो कंप्लीटली इसमें मिक्स हो गए। सो दिस फिनोमिना इज आल्सो नोन एज डिफ्यूजन। Here is the definition of diffusion that spreading and mixing of one substance with another substance due to the movement of its particle is known as diffusion। अब अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हमारे पास डिफ्यूजन जो होता है दैट इज मैक्सिमम फाउंड इन गैसेस। मैक्सिमम डिफ्यूजन गैसेस में फाउंड होता है और मिनिमम जो होता है वो सॉलिड में डिफ्यूजन फाउंड हमारे पास होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर। सो मैटर किस किस स्टेट में अवेलेबल होता है तो हम यहां पढ़ेंगे दैट मैटर इज अवेलेबल इन 3 स्टेट। Metal is available in 3 states. Number 1 is solid state. Number 2 is liquid state. And number 3 is gaseous state. These are the 3 states of matter. Solid state. This is our solid state. Here the particles are arranged like this. यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं वो पास प्रेजेंट होते हैं। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं आइस। और यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही पास प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर एज कंपेयर टू सॉलिड ये थोड़ा दूर होते हैं। इसको हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं वाटर। एंड थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल है ये काफी दूर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स
गैसियस स्टेट में पार्टिकल काफी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटर वेपर। So these are the three state of matter. Number one is solid state, number two is liquid state, and number three is gaseous state. Solid state के पार्टिकल है वो काफी पास पास प्रेजेंट है, जबकि लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स में थोड़ी मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होती है पार्टिकल के बीच में अवेलेबल होती है। एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं आइस, ये वाटर, और दिस इज वाटर वेपर। नाउ number one state is solid state। तो सॉलिड स्टेट का सबसे मेन जो कैरेक्टर है वो यही है कि इसमें पार्टिकल काफी पास पास होते हैं, दैट पार्टिकल आर वेरी क्लोज। इसके अलावा जो सॉलिड स्टेट होती है इसका शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी। इट्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेटली वॉल्यूम होता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, यहाँ पर ना ही यहाँ पर डेफिनेट शेप नहीं होता बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। ये जिस भी कंटेनर में हम रखते हैं लिक्विड को, जिस भी कंटेनर में हम रखते हैं उस कंटेनर का ही शेप ये उस कंटेनर के शेप में ही ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम अगर इसको रख रहे हैं किसी वाटर को हम रख रहे हैं किसी ग्लास के अंदर, so it takes the shape of that glass। अगर हम इसको किसी बीकर के अंदर रखें तो ये वाटर बीकर का शेप ले लेता है। तो it has a definite volume but not having definite shape, it can take the shape of the container in which it kept। उसके बाद हम थर्ड स्टेट की बात करते हैं। तो थर्ड स्टेट इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट का ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ना तो इसका डेफिनेट शेप होता है और ना ही इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये जिस भी कंटेनर में रखी जाती है उस कंप्लीट कंटेनर का जितना भी स्पेस अवेलेबल है उस सारे स्पेस को ये कैप्ट कर लेती है। लाइक अगर हम इसको किसी सिलेंडर के अंदर रख रहे हैं, दिस इज द सिलेंडर एंड वी आर फिलिंग गैस इनटू इट। तो यहां पर जो गैस अवेलेबल होगी वो सारे कंटेनर के अंदर फैल जाएगी। तो ये जिस भी कंटेनर के अंदर रखी जाती है उस कंटेनर के एंटायर जो वॉल्यूम होता है उसको कैप्ट कर लेती है। बट जब हमने वाटर की बात करी थी, वाटर केवल जो कंटेनर है उसकी लोअर जो सरफेस होती है उसी का शेप लेता है। बट जब गैस की हम बात करते हैं तो गैस जो कंटेनर है उस कंटेनर का कंप्लीट शेप ले लेती है। तो these are the three state of matter। number one is solid state, number one is liquid state, number three is gaseous state। solid state में क्या होता है, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, और सॉलिड जो स्टेट होती है इसके लिए सॉलिड मैटर को रखने के लिए हमें किसी भी कंटेनर की नीड नहीं होती, बिकॉज ये जो एनवायरनमेंट में है वो ऐसे ही रख सकते हैं। बट हम बात करें लिक्विड स्टेट की, तो यहाँ पर डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट इसका शेप डेफिनेट नहीं होता। जिस भी कंटेनर में हम इसको डालते हैं लिक्विड को, उसी कंटेनर का शेप ये एक्वायर कर लेता है। फिर आता है गैसियस स्टेट का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होता है, और ये जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेता है।
इसके बाद नाउ वी विल कंपेयर characters of these three states: solid, liquid and gas. So comparison of character of solid, liquid एंड गैस। तो हम यहाँ पर इन तीनों के कुछ कैरेक्टर्स लेंगे और उन कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं नंबर 1 इज सॉलिड, नंबर 2 इज लिक्विड एंड नंबर 3 इज गैस। एंड हियर आर द सम कैरेक्टर्स। Number 1 character is shape and volume. Shape and volume. तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है और साथ ही डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। डेफिनेट वॉल्यूम भी अवेलेबल होता है। सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी अवेलेबल होता है। बट अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होता बट यहाँ पर डेफिनेट वॉल्यूम अवेलेबल होता है और ये जिस भी कंटेनर में डाला जाता है उसी कंटेनर का शेप ये एक्वायर कर लेता है। गैस नाइदर हैविंग डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम। तो गैस में ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसके बाद हम सेकंड कैरेक्टर ले लेते हैं। ये था शेप एंड वॉल्यूम था फर्स्ट कैरेक्टर। उसके बाद हम सेकंड कैरेक्टर ले लेते हैं यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी से क्या मतलब है कि किसी भी मैटर को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, कितना उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको कितना दबा सकते हैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड आपको पता है दैट सॉलिड्स जो होते हैं वहां पर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है। सॉलिड में लेस इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं होने की वजह से जो सॉलिड है वो लेस कंप्रेसिबिलिटी को शो करते हैं बिकॉज यहाँ पर ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर स्पेस फ्री नहीं है। बट हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में हमने देखा था कि यहाँ पर एज कंपेयर टू सॉलिड मोर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से हम लिक्विड को सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। So it is moderate compressible. It is moderate compressible. Now if we talk about gases, गैस की अगर हम बात कर लेते हैं तो गैसेस में मैक्सिमम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस आर प्रेजेंट इन गैसेस। मैक्सिमम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस आर प्रेजेंट इन गैसेस। तो गैस में हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से दिस शो मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। Gases show maximum compressibility. So solid show less, liquid moderate, and gases show maximum compressibility. Third character we are taking expansion. Expansion का मीन क्या है कि कोई भी चीज कितना एक्सपेंड हो सकती है, कितनी फैल सकती है, उसको ही हम एक्सपेंशन कहेंगे। जब किसी भी मैटर को हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या करते हैं एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। जब किसी भी मैटर को हम हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से धीरे धीरे दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं सॉलिड में। जब किसी भी सॉलिड को हम हीट देते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं
अपना जो स्पेस अवेलेबल है उससे थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर चूंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा पास है, इसलिए अगेन ये यहाँ पर सबसे कम एक्सपेंशन शो करता है। यहाँ हियर इज आल्सो मिनिमम एक्सपेंशन, मिनिमम एक्सपेंशन, यहाँ पर मिनिमम एक्सपेंशन होता है। फिर हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में आपको पता है पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, तो ये मॉडरेट वाला एक्सपेंशन शो करेगा हीटिंग करने पर, मॉडरेट एक्सपेंशन शो करेगा। बट अगर हम बात करते हैं गैस की, तो अगेन गैस में पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, तो जब इसको हीट किया जाता है, जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। If we talk about example of diffusion, diffusion mean जब आप इंसेंस स्टिक को लाइट अप कर रहे हैं तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो एयर के अंदर मिक्स हो रही है, तो ये डिफ्यूजन है। इसके अलावा जब हम वाटर में शुगर ऐड कर रहे हैं, आप लेमनोड बना रहे हो, तो लेमनोड बनाने में जब आप उसके अंदर शुगर और साथ में लेमन ऐड कर रहे हैं, तो वहां पर हम शुगर और लेमन जब ऐड कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली वाटर के अंदर मिक्स हो रहे हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। और अगर आप ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल तो नहीं है वहां पर, बिकॉज वहां पर हमें डायरेक्शन बतानी है, तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं क्योंकि सभी पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन शो करते हैं। गैस स्टेट के सभी पार्टिकल्स ट्रांसलेटरी मोशन शो करते हैं, तो ये पाई तो सभी गैसेस में ये कैरेक्टर पाया जाएगा। बस इसका आप समझ सकते हो ये होता क्या है। जब स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल जाता है या किसी पार्टिकल से कोलोइड होने के बाद या कंटेनर की वॉल से हिट करने के बाद वो पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज नहीं करे, अगर वो पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहा तो उसे हम कहेंगे दैट दिस इज द ट्रांसलेटरी मोशन। ये सभी पार्टिकल शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहा थे एक्सपेंशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, सेकंड वॉल्यूम, सेकंड हो गया कंप्रेसिबिलिटी, थर्ड हमारे पास एक्सपेंशन हो गया जो कि मिनिमम सॉलिड में होता है और मैक्सिमम गैस में होता है, और मैक्सिमम फाउंड इन गैस एंड मैक्सिमम फाउंड इन गैस, maximum found in gas. Now the fourth character is fluidity या फ्लो। हम बात कर लेते हैं फ्लो की, मतलब कि ये पार्ट जो है इनमें फ्लो किस तरह से करते हैं। फ्लो अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड डू नॉट फ्लो बिकॉज यहां पर पार्टिकल्स वही पास प्रेजेंट है, इसलिए ये फ्लो नहीं करते। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, बट यहां पर हम देखेंगे कि इन पर एक लिक्विड जब फ्लो करते हैं तो यहां पर एक ऊपर की तरफ एक इनके पास एक सरफेस अवेलेबल होती है, एक अपर सरफेस अवेलेबल होती है, और गैस कैन ऑल्सो फ्लो, गैस कैन फ्लो, गैस ऑल्सो कैन फ्लो, बट यहां पर कोई भी सरफेस नहीं होती, गैस में कोई भी सरफेस अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मैक्सिमम जो फ्लूइडिटी या फ्लो शो करेगी वो गैस करेगी, मॉडरेट लिक्विड और जो सॉलिड होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं। नाउ वी टेक फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, now we take fifth characteristic, that is density, that is density। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो सॉलिड, चूंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल पास प्रेजेंट है, सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल पास प्रेजेंट है, इसलिए सॉलिड्स की डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, वो मैक्सिमम होती है बिकॉज पार्टिकल बिल्कुल पास प्रेजेंट होते हैं, तो सॉलिड शो मैक्सिमम डेंसिटी। अगर हम बात करें लिक्विड की, अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड जो मैटर है उसके कंपैरिजन में इनकी थोड़ी
इनसे थोड़ी लेस डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। एज कंपेयर टू सॉलिड इनकी थोड़ी लेस डेंसिटी होती है। और हम बात करते हैं सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? गैस की। बिकॉज गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स काफी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। गैस में पार्टिकल के बीच में इस तरह से काफी स्पेस अवेलेबल होता है, इसलिए यहाँ पर जो है गैस की मिनिमम डेंसिटी होती है। गैस की जो डेंसिटी है वो मिनिमम होती है। सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ 6th वन इज boiling point and melting point. Boiling point and melting point. Boiling point and melting point. तो अगर हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, तो जो सॉलिड होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर से अबव होते हैं। मीन ये मेल्टिंग स्टेट में भी नहीं होंगे और ना ही बॉइलिंग स्टेट में अवेलेबल होंगे रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा। तो ये क्या है, मोर देन रूम टेम्परेचर या अबव देन रूम टेम्परेचर, मोर देन रूम टेम्परेचर। इनका जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। बट अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड क्या होता है, हमें रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में नजर आता है। इसका मीन लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिलो रूम टेम्परेचर होता है। यहाँ पर जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है बिलो रूम टेम्परेचर, बिलो रूम टेम्परेचर। बट अगर इसके बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, हम लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर के अबव होता है, अबव रूम टेम्परेचर। तो ये जो है लिक्विड में एक स्पेशल बात है कि लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये तो बिलो रूम टेम्परेचर होता है, इसी वजह से लिक्विड हमें रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में नजर आता है। बट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बट जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है ये रूम टेम्परेचर से अबव होता है, मतलब रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, इसलिए वो हमें वहां पर गैसियस स्टेट में नजर नहीं आता, हमें लिक्विड फॉर्म में नजर आता है। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस में दोनों ही इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बिलो होते हैं रूम टेम्परेचर के, मतलब रूम टेम्परेचर से कम इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसीलिए इसी वजह से ये हमारे पास जो भी गैस जो भी गैस है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही बॉइल हो जाती है, मीन गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ द सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसी चीज को हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड फोर्सेस मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्सेस कितना अवेलेबल है। तो हमें पता है यहां पर चूंकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, इसका मतलब यहाँ पर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो हाईएस्ट है। वो क्या है? हाईएस्ट है। हम बात करें लिक्विड में हम मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जबकि यहां पर हम बात करें तो लोएस्ट होते हैं, लोएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अवेलेबल होते हैं यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे को बिल्कुल बांध के रखते हैं। बट हम बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, पर वो थोड़े लूज होते हैं, इतने लूज होते हैं कि पार्टिकल्स क्या है, फ्रीली मूव कर सके। इसी वजह से लिक्विड फ्लो कर सकता है, बिकॉज वहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सॉलिड से थोड़े कम है, पर
इतने अवेलेबल है कि वो एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, पर इतना भी ज्यादा नहीं बांधते कि उनको फ्लो होने में दिक्कत आए। तो यहाँ पर मॉडरेट वाली कंडीशन होती है। हम बात करें गैस की, तो गैस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो लोएस्ट होते हैं, पर यहाँ पर वो इतने वीक होते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को, पार्टिकल्स को आपस में एक दूसरे को बांध के नहीं रख सकते, इसलिए गैस के पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्लासिफाइड उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज शेप एंड वॉल्यूम। नंबर 1 इज शेप एंड वॉल्यूम। हम सॉलिड की बात कर लेते हैं, तो सॉलिड का शेप क्या होता है? डेफिनेट शेप, बट लिक्विड का शेप भी डेफिनेट और वॉल्यूम भी डेफिनेट। लिक्विड का ओनली वॉल्यूम डेफिनेट, शेप डेफिनेट नहीं होता। गैस का ना तो शेप डेफिनेट होता है, ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। सेकंड पॉइंट हमने लिया था कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। अगर हम बात करें लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा होती है। हम बात करें गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए वहां पर हम उनको ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो सॉलिड में हीट करने पर सॉलिड सबसे कम एक्सपेंड होते हैं। उसके बाद हम लिक्विड की बात करें, अगर लिक्विड को हम हीट करते हैं वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है। जैसे कि आप घर पे कभी हम पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, तो हम देखते हैं कि जिस वाटर लेवल से हमने नीचे रखा है, गर्म होने के बाद पानी उस वाटर लेवल से ऊपर पहुंच जाता है। आप नहाने के लिए जब भी पानी गर्म करते हैं, इस चीज को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप जिस लेवल पे मार्क करके भरेंगे और फिर गर्म होने के बाद देखेंगे तो पानी की जो लेवल होगी वो आपको ज्यादा दिखाई देगी। वो किस वजह से? बिकॉज जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो एक्सपेंड करते हैं हीट करने पर, इसलिए जो वाटर लेवल है वो आपके बकेट में इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है और इसलिए इसको हीट करने पर ये सबसे ज्यादा एक्सपेंड होती है गैस। उसके बाद हमने नेक्स्ट कैरेक्टर लिया था फ्लो। मीन कि वो फ्लो, ये जो तीनों स्टेट्स है इनमें मैटर किस तरह से फ्लो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सॉलिड फ्लो नहीं करते, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं और गैस भी फ्लो कर सकती है। बस लिक्विड में एक अपर सरफेस अवेलेबल होती है और गैस में अपर सरफेस अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं वो डेंसिटी की, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास होते हैं, बिल्कुल पास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा स्पेस होता है, इसलिए इनकी जो डेंसिटी है वो सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है, और गैस के पार्टिकल्स में काफी स्पेस अवेलेबल होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया था बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो अबव रूम टेम्परेचर, अबव रूम टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। इसलिए ना तो ये मेल्ट होता है ना ही ये वेपराइज होता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होते हैं। बट हम लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिलो रूम टेम्परेचर होता है, मतलब रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही जो लिक्विड है वो मेल्ट हो जाता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट होता है। जबकि हम गैस की बात करें तो इसके दोनों ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बिलो द रूम टेम्परेचर होता है, इस वजह से यहाँ पर ये हमेशा गैसियस स्टेट में ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं सॉलिड में वो सबसे ज्यादा होते हैं, इसी वजह से सॉलिड एक डेफिनेट शेप में अवेलेबल होता है। बट लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फोर्सेस होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होते हैं, बट इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़कर जा नहीं सकते, बट दे कैन
फ्लो इजीली। और गैस में जो होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो काफी कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़कर दूर दूर चले जाते हैं। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, हाँ बता दिया सर, ये तो हो गया। हो गया, ठीक है सर। सो दिस इज अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जो आप वर्क सबमिट कर रहे हैं वो गूगल क्लासरूम ऐप पर सबमिट करने की कोशिश करें, बिकॉज व्हाट्सएप में सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो जो भी वर्क आप सबमिट कर रहे हैं, जो भी असाइनमेंट कर रहे हैं, वो गूगल क्लासरूम पर सबमिट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।